Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Talha Feroz. Roll number is 23ME40. My topic on the presentation is related to the first 13 chapter of the Engineering Economic books by the Leland Blank, 7th edition, and we are going to learn about these 13 chapter in three parts. Like first is the fundamental, and second is the basic analysis tools, and then we will step toward the case study, which will help in our in the future making the better decisions regarding engineering point of view or some other point of view. So starting from our foundations of the engineering economic, so we will start in from that point. Why engineer need to think in dollars, time, or interest? As we all are aware of that, in the in the future or right present, all the manufacturer, bigger manufacturer, are willingly to hire those engineers which will give them the best quality along with the best rate or best cost, more like more economically justified kind of product or something like that. So this is the concept why the engineers need to learn about the engineering concepts. So starting from the engineering concepts, it like the present worth, the uh, worth, present worth is like the amount which is present at the uh, 0 year or something like that, and the future amount is future worth or is available at specific year. And then it is the salvage value which is present at the last year or of the product or engine, some kind of thing, or what we can in with what we can say in another words. So then is the interest rate, ROR, MAR. This interest rate will be like how much we can earn from by putting or by investing those, and ROR is what will we get return from by investing or something like that. And the minimum R is like minimum attractive rate of return, and especially in companies, high companies use this term because they have created a MAR, that if the project lie in those profit ranges or interest ranges, we will accept those projects. And then is the cash flow estimation. Cash flow is very helpful in engineering point of view, as it is a detailed overview at what is the cost we are receiving at that year and what is the cost we are spending or that some year, like specifically, which will be discussed later. In economic equivalences, like the worth of the product at presently, then at after 2 years, then and after 5 years, what is the economic equivalence? That is the economic equivalence of the product, that was it will be cost or something like that, like in the future or something like that. In simple and the versus compound interest, it is a very basic concept. Like simple interest is like what is actually like if I'm going to write, like if you have take invest 100 rupees at the cost of 10%, so it will if we gonna see about in simple, so it's simple, it will like every after every year you will receive 110 rupees, or next year you will get 10 more increment, and then say on. And if we gonna see about the compound interest, and the compound interest, it will like 100, फर्स्ट ईयर में आपको 110 मिल जाएगा. And if we gonna see about second year, it will upon 110 of the 10%, like it will be every year added upon the value, that is the sum of the profit plus the principal amount. So this is the concept, very basic and simple concept of the interest of the simple and compound. Then we'll move towards actually the process, how it is defined. Every industry or every kind of company use these project. Like first they will define their objective, then find alternatives, and then make cash flows and apply their mars. And if these are acceptable, they will go towards doing that project or something. Right side, there is the cash flow, which shows the present at zero. Presently, the amount available on the 0 year is the present amount. The amount available on 1, 2, 3, 4 year is the annual. And then at last year, like like we will take the example of 20-year projects. So at the amount present at 20 year, that will be salvage value or the future value.
Then we will next towards an example in which we will like basically explain simple and the compound interest. In simple interest, it is a concept in this example actually. हमारे पास एक 5,000 का लोन है, 8% पर ईयर लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी हमारे 5,000 पहले है, उसके बाद 8% लग के पहले साल आपको मिलेगा, और उसके बाद जो पहले साल का हमारा अमाउंट है उसके ऊपर 8 साल का लगेगा, 8% का लगेगा। तो इसमें उसने बताया कि हमारे पास 4 प्लान हैं जिसमें हम एक प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आखिर में पे करें। तो फिर दूसरा ये है कि हम ईयरली पे करें उसके, या प्रिंसिपल के एंड पे पे करेंगे। थर्ड इज द कि हम हाफ ऑफ पे इंटरेस्ट हम साथ साथ पे करते हैं और हाफ प्रिंसिपल ईयरली पे करते जाएंगे। और एक लास्ट हमारे पास जो है वो है एनुअल पेमेंट्स का, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमारे पास अगर हम देखा जाए जिसमें हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और हाफ प्रिंसिपल दे रहे हैं, दैट इज द बेटर plan. So because in this plan we have to pay less amount as compared to the others. Then move toward the how actually these are the factors which is affecting the interest or something like that. इसका स्लाइड में अगर हम देखा जाए ना, तीन सिंपल सी हमारे पास कंसेप्ट यानी फैक्टर्स हैं, जिसमें एक सिंगल अमाउंट है, एक यूनिफॉर्म सीरीज है, एक हमारे पास क्या कहते हैं अर्थमेटिक और ग्रेडियंट सीरीज है। सिंगल अमाउंट क्या है, किसी भी स्पेसिफिक ईयर पे हमारे पास कोई भी अमाउंट पड़ी हम उसको सिंगल अमाउंट कहेंगे। और अगर वही अमाउंट हमारे पास सेम अमाउंट हमारे पास किसी इंटरवल में पड़ी है, लाइक 1 2 यानी 4 सालों में, यानी हजार हजार हर साल लग रहे हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म कह देंगे। और जो तीसरी है दैट इज हमारे पास फ्यूचर अमाउंट विच इज प्रेजेंट ऑन द like after the 0 year it will consider as a future amount, और salvage value जो लास्ट में है। अब अर्थमेटिक एंड ग्रेडियंट जो है, अर्थमेटिक ग्रेडियंट है और ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट है, दे विल लाइक कि अर्थमेटिक में एक सिंगल अमाउंट ऐड हो रही होती है, लाइक 50 का इंटरवल ऐड होता जा रहा है, पहले साल 100, फिर 150, फिर 200, और दिस काइंड ऑफ थिंग। और ज्योमेट्रिक ग्रेडियंट में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक खास परसेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है, 10% के साथ हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। सो दिस इज द थिंग। अब एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट वर्थ गिवन है, हम इसको फ्यूचर वर्थ में लेके जा रहे हैं, लाइक 6 ईयर पे लेके जा रहे हैं। 20 ईयर गिवन है एंड वी हैव टू लाइक टेक द अमाउंट टू सर्टेन ईयर। तो ये फैक्टर लगा लिए, फ्यूचर अमाउंट पे लेके जा रहे हैं 20 ईयर्स पे, तो हमारे पास प्रेजेंट गिवन एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स द फ्यूचर अमाउंट। तो इस वजह से हम उसको उस पे लेके जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला गिवन है फैक्टर, हम इंटरेस्ट टेबल से उठा सकते हैं एंड वी गेट द फाइनल आंसर। And this is the actual summary of those factors, like single amount, uniform series. Left side they will showing about how you will take these values from future to the present, and in the right side we are telling about how we can take the values from present to the future. So this is a factor, and but very simple approach we should learn is that in the uniform series we have to shift towards before one period. Like if the uniform series is starting from the second year, we have to drop those series into the first year, and then we will shift towards to the present year. In the final in the future term we don't do this kind of thing. This is the factors that is also I told about the shifted uniform series. We have to put those series towards like before 1 year, and then we will shift towards 0 year. And it is the example like हमारे पास प्रेजेंट में पड़ी है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म सीरीज भी नजर आ रही है, हमें कैश फ्लो राइट साइड पे गिवन है, एंड डाउनवर्ड शो कर रहा है कि वी आर पेइंग और द कंपनी इज पेइंग। तो दिस इज द टर्म एंड वी विल टेक टुवर्ड इट टू द प्रेजेंट टर्म। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि फर्स्टली वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लाइक उसको हम 1 साल पहले ड्रॉप कराएंगे जहाँ से स्टार्ट हो रही है, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स 0। अब नॉमिनल एंड इफेक्टिव है, इसमें जो हमारा डिफरेंस कर रहे हैं दैट इज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कि कितना बार उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है। अगर तो एक बार लग रहा है तो इट्स अ नॉमिनल रेट के वो सिंपल कंसिडर कर रहा है। इफेक्टिव में क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स लग रहा होता है, तो ये उसकी डिफरेंस है, उसका फॉर्मूला साथ गिवन है। देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एग्जांपल जिसमें वो नॉमिनल रेट उसने दे दिया, अगर हम डेली कंपाउंडिंग करेंगे तो उस हिसाब से क्या बनेगा, और एनुअली कंपाउंडिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वो उसने पॉइंट दे दिया।
अब प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो भी हमारा कैश फ्लो बना है, जो भी हमें हम उसको उठा के ज़ीरो पे लेके आते हैं और उसमें एनालिसिस करते हैं, और अगर प्रेजेंट वर्थ ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम उसको एक्सेप्टेबल कंसीडर करते हैं। ये हमारी ये कंडीशंस है। और फिर हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी डिस्कशन हो रही है रिगार्डिंग द सी वाटर एंड द ग्राउंड वाटर कंसेप्ट। अब इसमें हमने उसने बता दिया कि पहली कॉस्ट क्या है हमारे पास, एनुअली क्या पड़ी है, और हमें पर ईयर के हिसाब से क्या पड़ी है। तो इसी तरह ग्राउंड वाटर का भी ये दिया है, सैलवेज वैल्यूज भी दी है। तो हमने उसको उठा के क्या किया, प्रेजेंट वर्थ में ले आए हैं, और फॉर्मूला हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट है, जिसके बाद हम कहते हैं कि सी वाटर पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वो क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ उसकी क्योंकि हमारे पास जो मार गिवन है उसके मुताबिक जो हमारे पास एडजस्टेड अमाउंट है वो हमारे पास 31 है। तो इस वजह से देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड एनुअल वर्थ एनालिसिस। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस का एक कंसेप्ट बताना मैं मेरे पॉइंट से मिस कर गया, दैट इज अगर अनइक्वल लाइफ इंटरवल्स हो तो हम उसमें उसको इस तरह डील करते हैं कि हम उसके लिए फिर एलसीएम मेथड हो जाता है, या हमें फिर एक यानी स्टडी पीरियड का कंसेप्ट लेना पड़ता है, और उसमें ऐसे नहीं है। जबकि एनुअल वर्थ में हमारे पास बहुत इजी हो जाता है, जब हम एनुअल वर्थ निकाल लेते हैं किसी प्रोजेक्ट की तो थ्रू आउट हर साल सेम रहती है। तो हम यूजली जो भी है इसमें एनुअल वर्थ को यूज़ करते हैं, because definitely it gives us more easy way to solve those problem। अब ये एक लाइफ साइकिल है, इसको उसने सॉल्व किया हुआ है, फर्स्ट कॉस्ट भी गिवन है, प्रेजेंट वर्थ भी गिवन है, उसको हमने उठा के एनुअल वर्थ में कंपेयर किया और एनुअल वर्थ का जो रिजल्ट है वो हमने बता दिया कि वो हमारा क्या है। इसी तरह रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न में हम यूजली हम यही देख रहे होते हैं कि हमें क्या रिटर्न आ रहा है, किस रेट पे रिटर्न आ रहा है, और ये चीज़ें। अब ये सिंगल प्रोजेक्ट के लिए होगा तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। अगर हम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स ले लेंगे तो हम यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करेंगे, हम सिंपल नहीं है कर सकते, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। Then BCA, that is a benefit cost analysis, and it is very important in public sector. If you are working to along with the government projects, it is very important concept, as the benefit cost analysis help because usually जो गवर्नमेंट होता है वो एक प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं देख रहा होता, वो ये देख रहा होता है कि कितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को, और दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इसमें जो कंसेप्ट में फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक बेनिफिट माइनस डिस बेनिफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट आ रही होती है। और इसका अगर हम ये कन्वेंशनल है, और अगर हम एडवांस फार्मूला देखें तो उसमें हमारे पास कॉस्ट के साथ एनुअल या मेंटेनेंस कॉस्ट को भी माइनस कर लेते हैं। अब देन टुवर्ड्स वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द काइंड ऑफ, इसमें हमारे पास रेट आ जाता है कि मार कैसे डेवलप कर रहे हैं, और WCCA वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला भी गिवन है। और मार हम क्या करते हैं, मार इस तरह एस्टेब्लिश करते हैं कि कैपिटल कॉस्ट हमारे पास हो, रिस्क फैक्टर और प्रॉफिट फैक्टर हो, तो उसको यूज़ करते हुए एक मार हम डेवलप करते हैं। और ये हर कंपनी की डिमांड होती है वो एक मार डेवलप कर ले, ताकि वो कोई भी प्रोजेक्ट उसके सामने आए ना तो वो उस मार के ऊपर एवेलुएट करे, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, नहीं तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर ले, या एक कंडीशन हम कहते हैं जिसको हम डू नथिंग कंडीशन कहते हैं, उसको फॉलो अप को निकाले। देन इट इज एग्जाम्पल, इसमें हमें बता रहे हैं कि वर्टिकल फार्मिंग प्रोजेक्ट है, हांगकांग का फाइनेंस हुआ है, उसमें डेप्ट भी है, रिटेन अर्निंग भी है, स्टॉक सेल भी है, कंपेयर टू VACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3, डेप्ट हमारा इतने परसेंट पे आ रहा है यानी 6.8 पे आ रहा है, स्टॉक हमारे पास 5.9 पे आ रहा है, फैक्ट्री पे हमारे फ्रैक्शन जो पड़ी है वो 0.5 डेप्ट है, 0.2 रिटेन है, एंड 0.3 तो WCCA कैलकुलेट की है। और उसके बाद हमने बताया कि जो हांगकांग का प्रोजेक्ट है उस पर जो यानी वेटेड एवरेज आ रही है वो 6 आ रही है, जबकि दूसरे पे हमारे पास जो है वो 9 आ रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट। और अब इसमें रिप्लेसमेंट एंड रिटेंशन आ गया, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव, लाइक एवरी इंजीनियर हैव टू think about their machines of replacement of the machine at after the certain period of time, the machine requires their replacement because their efficiency decreases for the passage of time and their cost is increasing, so that is very important type। और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्विस लाइफ का फैक्टर बहुत आता है, जिसमें हम कंसेप्ट देखते हैं डिफेंडर और चैलेंजर का। और इसमें हमारे पास यूजली यही होता है, जो हमारे पास मशीन अवेलेबल है उसको हम डिफेंडर की कैटेगरी में डाल रहे होते हैं, और जो दूसरी अवेलेबल है उसको हम चैलेंजर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है इसका।
और इसको फिर हम यानी आप इसका मेथड है, आप इसमें सीबीए भी डाल सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के भी थ्रू कर सकते हैं, बट यूजली हम इसको ईसीएल मेथड से करते हैं सर्विस लाइफ के। और उसमें एक ग्राफिकल हमारे पास पॉइंट बनता है, जहाँ पे एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे मिनिमम हमारे पास कह लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बट और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। और उसके बाद वो पीरियड ऐसा होता है कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही है और प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज करती जा रही है, बिकॉज डेफिनेटली फैक्टर्स हैं उसमें, वियर टेयर्स आ सकती हैं मशीन में, कोई और इश्यूज आ सकते हैं तो उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप कर सकती है। अब इसमें ये स्काडा सिस्टम का उसने एक एग्जांपल दे दी है जिसमें डिफेंडर और चैलेंजर है। डिफेंडर में हमें कह रहा है कि कॉस्ट हमारी 1,000 1 लाख यानी $100,000 की कॉस्ट है, उसमें ओसी हमें उसने बताया 25,000, यानी हमारा ईयरली मेंटेनेंस जो आ रहा है वो $25,000 है और 3 साल का है, सेल्वेज वैल्यू उसकी ज़ीरो है। और दूसरे केस में क्या है, हमारे पास वो है। अब इसको हमने एक 2 इयर्स के प्रोग्राम के थ्रू ईसीएल मेथड से कैलकुलेट किया, तो जिसमें हमारा क्या कहते हैं ये रिजल्ट आया कि sunk कॉस्ट हमारी आ रही है 2,75,000 एंड द अदर बुक वैल्यू इज़ 1,87,000। तो इसमें उसने फिर आगे हमें रिजल्ट बता दिया कि हम यूज़ मार्केट वैल्यू को यूज़ करते हुए हम डिसीजन ले लें। तो वो हमारा डिसीजन ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि हमें क्या ये यहाँ पे कि हम ये डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं बजट लिमिट। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और बाकी प्रोजेक्ट्स में भी ये होता है कि हम हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, वेदर वी हैव टू एक्सेप्ट, वेदर वी हैव टू रिजेक्ट, और अ कंडीशन लाइक डू नथिंग कंडीशन। तो उसमें होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में हम यूजली एन वर्थ वर्थ और प्रेजेंट वर्थ को चेक कर रहे होते हैं और उसी से हम डिसीजन ले रहे हैं। और ये अब इसमें बताया हमें उसने ए बी सी डी का प्रोजेक्ट है। अब इसमें उसने ए बी सी डी को पहले सिंगली एवेलुएट किया, देन ए और सी को यानी चैलेंजर डिफेंडर कंसेप्ट के साथ किया, और सी डी को फिर इसी तरह। फिर जो हमारा रिजल्ट आया ऑप्टिमम बंडल में, हमने कहा कि सी डी वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं रेदर देन बाकी प्रोजेक्ट। अब पे बैक एंड ब्रेक इवन एंड पे बैक, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ना ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसमें रेवेन्यू की जो टोटल कॉस्ट होती है ना, टोटल रेवेन्यू की जो कॉस्ट है वो हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वल हो जाती है, यानी कि बिजनेस ना प्रॉफिट कमा रहा है ना वो लॉस में कमा रहा है, बस अपना पूरा पूरा टाइम। और पे बैक पीरियड वो होता है कि जिसमें हम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर होता है कि कंपनी इट विल टेक, यानी कंपनी को कितना टाइम लगेगा कि वो नेट अपना कंप्लीट कर सकती है या उस पर अपना उसको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वो रिटर्न हो सकती है। तो ये ब्रेक इवन और उसका एनालिसिस उसका फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। देन इट इज द केस स्टडी, और ये केस स्टडी हमें हम इस तरह डील करेंगे कि हम कोई भी इंजीनियर हो सकता है, उसके पास ये केस आया है कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब उसकी कंपनी डील कर रही है उसके नेचुरल में, विंड में भी कर रही है, सोलर में भी कर रही है, दरिन, बट उनको ना एक कैपेसिटी इंक्रीमेंट आया, यानी गवर्नमेंट के साइड से आया कि हमें ज़्यादा बिजली चाहिए। तो देवर लाइक कि हम किस फील्ड को इन्हेंस करें तो हमारी जो हमें प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा आएगा और हमारी बाकी चीज़ें भी काम आएंगी। तो इसने उसने बता दिया कि हमें एक टेबल गिवन है ये, जिसमें हमें सारी डिटेल्स मेंशन है। अब कोल का फैक्टर वो बता रहे कि हमारे पास 7.5 किलो वाट पर आ रही है, डॉलर पर किलो वाट। नेचुरल गैस पे 8.5, वुड पे 8.2 एंड विंड पे 8.2 एंड रिन्यूएबल पे 8.8 कॉस्ट आ रही है। ये हमें बता दिया इनका कैपेसिटी कितनी है, 21% ऑफ द पीईसी, दैट इज 13,000 मेगावाट, एंड दिस इज meters across 12 countries of the central Texas। तो हमें ये भी पता है फैसिलिटीज़ का जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, यानी एक लाइफ पीरियड वो 20 से 40 साल का, हम कंसिडरिंग इट टू 20 ईयर्स एंड बिल्ड टाइम 2 से 5, और कैपिटल कॉस्ट हमें उसने बता दी है कि नहीं लगेगी। हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको हम देख सकते हैं प्रेजेंट वर्थ के थ्रू भी और उसके थ्रू भी। हमने इसको इसकी प्रेजेंट वर्थ को हमने निकाल के इसका हमने पर किलो वाट का एस्टिमेट लगवाया कि हमें वो किस तरह मिल रहा है। उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया एलईसी का, जो हमें फार्मूला ये हमें बुक में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसमें हम वो यूज़ करते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास पीटी इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने टी लिखा है कि जो अगर 20 साल नहीं करना चाहता वो 40 साल करना चाहता है तो वो 20 ईयर्स पुट कर सकता है और ये चीज़ें यूँ कर सकता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल कम बैक टू अ कंडीशन लाइक कि नेशनल जो आ रहा है हमारे पास वो $11 आ रहा है। जो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज हैं
इसमें हम कॉल है और ये चीज़ें हैं वो हमारे पास 10.27 है, और जो हमारे पास रीन्यूएबल है वो 10.92 है। तो हम इससे रिजल्ट निकालते हैं कि स्लाइटली हमारा जो प्राइमरी सोर्सेज को अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो उससे हमें भी बेनिफिट होगा और कॉस्ट भी हमारी कम होगी, यानी पर डॉलर कंज्यूमर को भी कम मिलेगा। तो जब कम मिलेगा तो दे विल डेफिनेटली गवर्नमेंट विल डू दोज प्रोजेक्ट्स और गिव अस द इन्वेस्टमेंट्स टू मेक दोज प्रोजेक्ट। तो इस वजह से हम इसको यानी एक्सेप्ट करेंगे। So that is from my side all, like from foundation to break even analysis तक। और इसमें केस स्टडी भी ऐड कर दी जिसमें हमने बताया कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो इन्हेंस करना चाह रही है अपना यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट से सीख कर रही है, बट वो गवर्नमेंट को बताना चाह रही है कि हमें इस प्रोजेक्ट से ये कॉस्ट हमें यूनिट की कम पड़ेगी और हम इसी तरह कंज्यूमर को कम अफोर्ड कर सकते हैं। So that is from my side, Jazakallah, and the last from my side, this is from all from my side, Jazakallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Asib Raja. My roll number is 23ME48. I am a student of 6th semester of Mechanical Engineering Department from UD Texla. Today we are discussing the subject Engineering Economics, and I will tell you all the basics or fundamentals of the Engineering Economics from chapter 1 to chapter 13. Now let's go to our topic. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स पे हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ओपनिंग डिक्लेरेशन ऑफ टूल्स कोर फाइनेंशियल फैक्टर्स। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप इस ये मुराद ले सकते हैं कि जिस तरह आज के 100 रुपये थे या हमारे पास 2020 के 100 रुपये थे, तो वो आज हमारे पास 200 रुपये 250 रुपये हैं। तो आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं जिस तरह 2020 2018 में हमारे पास जो डॉलर होता था वो 100 रुपये का होता था, लेकिन आज वही डॉलर हमारे पास 280 रुपये का है या 290 रुपये का है। तो ये हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। और जो उस वक्त का 100 रुपये हमारे पास आज के 280 रुपये के इक्वल है, वो हमारे पास इकनॉमिक इक्विवेलेंस है। तो चलते हैं। इसके लिए आपको कैश फ्लो मैकेनिक्स ही पता होना चाहिए, कैश फ्लो डायग्राम की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ गया है फार्मूला फ्यूचर वर्थ का। ठीक है, यहाँ सारी एब्रीवेशन लिखी हुई हैं कि एफ से फ्यूचर वर्थ है, पी से प्रेजेंट वैल्यू, आई आपके इंटरेस्ट रेट को शो करता है, एन आपके नंबर ऑफ पीरियड को शो कर रहा है, और जो ए है वो आपके पास इक्वल रिपीटिंग पीरियड्स को शो कर रहा है। तो इसमें जैसा कि उसने यही बेसिक्स बताई हुई है कि अगर हम सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट लेना चाहेंगे तो एफ बाई पी का फैक्टर यूज़ होगा। अगर हम प्रेजेंट फाइंड करना चाहेंगे तो पी बाई एफ का। और इसी तरह अगर हम उसका यूनिफॉर्म सीरीज़ बनाना चाहते हैं कि हर साल पे हमें इक्वल वैल्यू पता चल जाए कि हमने कितनी पे करनी है, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म सीरीज़ फैक्टर यूज़ होते हैं। तो चलते हैं। अभी उसने यही बताया हुआ है कि वाई टाइम मनी हैज़ टाइम वैल्यू। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब बहुत सी कमियाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिस वजह से ना हमारे पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यहाँ उसने यही डिस्कस किया हुआ है। और इकनॉमिक इक्विवेलेंस जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 2020 के 100 रुपये आज के 280 रुपये के इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे कैश फ्लो डायग्राम्स का आपको बताया हुआ है कि अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारे पास अपवर्ड जा रहे हों वो कैश इनफ्लो होते हैं, और जो डाउनवर्ड आ रहे हों हमारे पास कैश आउटफ्लोज होते हैं। बेसिकली कैश फ्लो डायग्राम की यही खासियत है कि वो आपको बता देती है कि हमारे पास कब पैसे आ रहे हैं और हमारे पास कब पैसे जा रहे हैं। जो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए कैश आउटफ्लो होगा, और जो हमें पैसे मिल रहे होंगे या जो हम कमा रहे होंगे वो हमारे लिए कैश इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे उसने एक शिफ्टेड यूनिफॉर्म सीरीज़ का जिक्र किया हुआ है। शिफ्टेड यूनिफॉर्म सीरीज़ क्या है कि जिस तरह ना उसने हमें हर साल इक्वल वैल्यू, जिस तरह हम किस्तें दे रहे होते हैं कि हर साल हमने 5,000 रुपये देने हैं या हर महीने हमने 5,000 रुपये देने हैं, तो हमारे पास शिफ्ट यूनिफॉर्म सीरीज़ होती है। और जब ये सीरीज़ को हम सिंगल प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ईयर बैक ड्रॉप होगी सिर्फ प्रेजेंट के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए वो उसी लास्ट ईयर पर ड्रॉप होगी। इसको अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ उसने हमें इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वर्थ बता दिया है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट में दो चीज़ें आ जाती हैं, नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव रेट्स।
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम सिंपली सी मिसाल लेना चाहें कि जिस तरह अगर हम बाहर कहीं खाने जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, वहाँ उन्होंने लिखा होता है 1000 रुपये ऑनलाइन 1000 रुपीज़, लेकिन जब आप खाना या कोई चीज़ ले लेते हैं उस पर आप मुख्तलिफ टैक्स वगैरह देते हैं, वो भी एक तरह का हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाता है। जो हमें गिवन होता है उसको एज अ मिसाल हम नॉमिनल कह सकते हैं, और जो हम पे कर रहे होते हैं वो इफेक्टिव कहते हैं। और इसके बाद प्रेजेंट वेल एनालिसिस है और इक्वल सर्विस इकोनॉमिक लाइफ। तो अब हम चलते हैं, यहाँ उसने हमें कुछ फार्मूलाज दे दिए हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में बेसिकली ना उसने हमें कंपाउंडिंग पीरियड दे दिया होता है, और नॉमिनल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता। जैसा कि इसने यहाँ मिसाल लिखी हुई है कि 12% कंपाउंडेड मंथली था, तो उस केस में हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना था, आर, उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक साल में कितने महीने थे उसको उससे डिवाइड करके हमने ये अपना फाइनल आंसर निकाल लिया। तो चलते हैं, अब हमारे पास प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस था। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई से भी दो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो इक्वल लाइफ के हैं तो हम उन दोनों की प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर लेते हैं, और जिसकी प्रेजेंट वर्थ कम होती है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह प्रेजेंट वर्थ जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, और अगर उन दोनों की लाइफ डिफरेंट है तो फिर हम उसको एलसीएम मेथड से करते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी तरह दो और टूल्स हैं जिनसे हम सेम काम कर सकते हैं कि हमारे पास एनुअल वर्थ एनालिसिस है। एनुअल वर्थ से क्या होता है कि वो हमारे पास इक्वल सीरीज़ निकल आती है ऑल ईयर्स पे, और वो जिसकी ज़्यादा हो हम वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह कैपिटल रिकवरी का भी उसने यहाँ हमें थोड़ा कंसेप्ट दिया हुआ है कि एनुअल वर्थ में दो होती हैं, एक कैपिटल रिकवरी होती है और एक एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो चलते हैं हम आगे। अब यहाँ आगे हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न और मार। मार का मतलब है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमेशा प्रोजेक्ट हमारा कब इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होगा, जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो होगा वो मार से ग्रेटर होगा। अगर वो लेस देन मार है तो फिर हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं है। और इसी तरह उसने बताया हुआ है कि अगर जब हम अपनी कैश फ्लो की जब हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें प्लस माइनस साइन चेंज हो रही हों डिस्क्रीट, जिससे कि हमारे पास कोई इक्वेशन होती है x⁴ माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि साइन दो बार चेंज हुआ है तो हमारे पास दो रूट्स होंगे। तो इसी तरह मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न का भी यही सीन है कि अगर आपकी क्वेश्चन में दो साइन या दो से ज़्यादा साइन चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसके दो से या तीन से भी ज़्यादा उसके रूट्स होंगे। जितने साइन चेंज हो रहे होंगे उतने उसके रूट्स आएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू वार्ड्स इंक्रीमेंटल एनालिसिस एंड पब्लिक सेक्टर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब इसमें मल्टीपल आर ओ आर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, इंक्रीमेंटल आर ओ आर क्या होती है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है, और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स क्या है। ठीक है, अब इसने इसमें बताया था आर ओ आर क्या होती थी। अगर हमारे पास कोई भी कैश फ्लो गिवन है ना, तो हम उसकी इक्वेशन बना के, क्योंकि वहाँ हमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता था और वहाँ हमने मतलब वो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना होता था, अगर वो मार्च से बड़ा होता था तो हम प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली जस्टिफाइड मानते थे। तो उस सीन में क्या होता था कि हम प्रेजेंट वर्थ इक्वेशन बना के उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते थे, और वहाँ हिट एंड ट्रायल रूल से ना इंटरेस्ट टेबल से सिलेक्ट करके वैल्यूज पुट करते थे और आंसर निकालते थे। जहाँ हमारा आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे इसके लिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, अगर वो मार्च से बड़ा है तो तब हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है। लेकिन जब हम इस चैप्टर में आए तो अब हमने देखा कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। अब जो हमारे पास पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हुकूमत उनमें अपना फ़ायदा नहीं देखती, वो देखती है कि आवाम का कितना फ़ायदा है। तो उस लिहाज से जो हमारे मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही लो होता है, तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो इसलिए उसने यहाँ पे बताया है कि सिंपल और आर ओ आर रैंकिंग यहाँ फेल हो जाती है। और इसी तरह जैसा कि अब हम देखते हैं, अगर हमारे लिए हुकूमत कोई प्रोजेक्ट निकाल रही है तो उसमें हमारे लिए 0% इंटरेस्ट रेट है या 2% होता है, होता दो तो होता ही नहीं है बिल्कुल। और लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स देखें तो उनमें अच्छा भला वो लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आ गया, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसके बेनिफिट्स निकालते हैं, उनकी कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, और इसी तरह जो उनमें नुकसानात होते हैं, डिसबेनिफिट्स होते हैं, उनकी कॉस्ट को निकाल के हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कर देते हैं।
अगर वो ग्रेटर देन 1.0 आ जाए तो हम कहते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है। ठीक है, फिर उसने इसी तरह नीचे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव्स, बेनिफिट्स आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड पॉसिबल। ठीक है, और इसी तरह उसने अब मॉडिफाइड बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बता दिया है। उसमें उसने क्या किया कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह होती हैं ना, तो उनको भी हम फार्मूले में रखते हैं इस जगह पे। वहाँ हमारे पास क्या होता था कि जो जितनी भी टोटल कॉस्ट है ना वो डिवाइड हो रही थी, लेकिन यहाँ ऊपर आ गई हैं हमारे पास, लेकिन काम हमारे पास सेम हो रहा है। अगर ग्रेटर देन 1 आएगी तभी हम प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड मानेंगे। अब उसके बाद जो आ गया है वो फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है हमारे पास, तो यहाँ उसने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया, रिप्लेसमेंट एनालिसिस बताया और ब्रेक इवन एनालिसिस बताया। तो चलते हैं हम अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है ना उसको हम सिंपली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह भी सकते हैं। अब इसमें उसने बताया कि डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। अच्छा, अब डेब्ट क्या है कि हम लोग जो होता है ना, इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ मतलब जिस तरह हम कहते हैं कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसने इतने करोड़ रुपए लोन लेके अपना प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेप्ट होगा। ठीक है, डेप्ट कैपिटल होगा क्योंकि हमने उसमें अपना कोई इन्वेस्ट नहीं किया। अब इक्विटी कैपिटल क्या है कि अगर आप अपनी चीज़ें, मतलब अगर आप अपने पैसे चाह रहे हो कि आज मेरे पास 1000 रुपये हैं या लाख रुपए हैं, अगर मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 5 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे, या वो हमारे पास इक्विटी कैपिटल में आ जाएगा। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसमें हमारे पास उसने फार्मूला दिया हुआ है कि इक्विटी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेप्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट 1 - डेप्ट इंटू 1 - टैक्स रेट। ठीक है, अब उसने क्या है कि सेटिंग द मार, उसने क्या है मार जो है ना हमेशा हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ी होनी चाहिए। हायर मार फॉर रिस्क projects to compare compensate for uncertainty. The MAR is the hurdle rate of every project must clear. A project ROR must exist MAR to be economically justified. वही बात है कि हमारी जो मार है वो ROR जो है ना हमारा मार से ग्रेटर होगा तभी प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और रिप्लेसमेंट एंड रिटेंडेशन डिसीजन। तो अब इसमें इसने दी हुई है इकोनॉमिक सर्विस लाइफ। अब अक्सर औकात क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास एक मशीन थी उसको हम काफ़ी टाइम चलाते रहे, या कोई मोबाइल था कि कल को हमने 35,000 का लिया, लेकिन आज को वो अगर हम बेचने जाएँ तो 35,000 का नहीं बिकेगा, क्योंकि हमने उस मोबाइल को यूज़ किया है। तो इस वजह से उसकी जो इकोनॉमिक सर्विस लाइफ है ना उस हिसाब से उसको वैल्यू दी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका मोबाइल 4 साल पुराना है तो आपको बहुत ही कम रेट दिया जाएगा, अगर साल पुराना है तो थोड़ा ज़्यादा रेट दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ बताया गया है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें, बैलेंस कैपिटल रिकवरी फॉल्स विद एज अगेंस्ट AOC rise with age. The annual worth minimizing year is the optimal replacement point. Determines when an asset should be retired. जिस तरह के मतलब हमारा मोबाइल पुराना हो गया, अब वो नए दौर के काम नहीं कर सकता, तो इसी तरह मशीन भी हमारे पास इसी तरह होती है कि वो पुरानी हो जाती है। अब इसमें उसने डिफेंडर वर्सेस चैलेंजर का बता दिया है। उसने कहा जो आपके पास करंट होगी ना, मतलब जो अभी मशीन मेरे पास मौजूद है वो एज अ डिफेंडर होगी, और जो मैं न्यू लेना चाह रहा हूँ ना वो चैलेंजर होगी। अगर हम इन दोनों पे एनालिसिस करेंगे कि कल को हमें कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो जो सिलेक्ट होगी उसको हम न्यू डिफेंडर रख लेंगे, और जो उसके मुकाबले में नहीं होगी वो हमारे पास चैलेंजर आ जाएगी। तो इसमें उसने यही कुछ बताया हुआ है। और फिर इसने कैपिटल रेशनिंग ओवरव्यू दिया है और सिलेक्शन मेथड दिया हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा, इक्वल लाइफ प्रोजेक्ट्स हों तो हम उसको PW से या एनुअल वर्थ या ROR से भी कर सकते हैं, लेकिन अनइक्वल के लिए हमें LCM मेथड के थ्रू जाना पड़ता है। तो अब हमारे पास ब्रेक इवन एनालिसिस आ गया है। ब्रेक इवन एनालिसिस में बेसिकली ना ये हमारे पास एक ग्राफ होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन हम लगा लेते हैं जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, और एक है टोटल कॉस्ट विद लोअर वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस केस में उसने हमें जैसा कि बताया हुआ है कि जब हम इस लाइन से शुरू होते हैं ना, ठीक है, इस लाइन के नीचे नीचे हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना कोई मतलब
अगर इस लाइन के नीचे आ जाए ना हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना हमें कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम इस लाइन के नीचे रहते हैं तो यहाँ हमें लॉस है। लेकिन जब हम इस लाइन पे पहुँच जाते हैं ना तो तब हमें ना हमें प्रॉफिट हुआ होता है ना लॉस हुआ होता है। इसके बाद जो हमारा प्रॉफिटेबल क्राइटेरिया ना वो शुरू हो जाता है, मतलब जब हम इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं तब हमारे पास प्रॉफिटेबल इरा शुरू हो जाता है। तो चलते हैं अब अपने केस स्टडी की तरफ, जो कि है हमारे पास तो चलते हैं अपने केस स्टडी की तरफ, इंडस्ट्रियल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी हुई है, ठीक है। उसने हमें कहा हुआ है 2 अल्टरनेटिव सिस्टम आर बीइंग कंडक्टेड, अ कन्वेंशनल कूलिंग सिस्टम एंड एडवांस्ड हीट रिकवरी सिस्टम। द फैसिलिटी मस्ट evaluate both alternative using PWA WRR methods and tell the more economically justified option। ठीक है, अब इसने हमें ना यहाँ पे इसने हमें मार दे दी है, ठीक है। अगर हम मार को देखना चाहें ना तो ये उसने हमें यहाँ 10% दे दी है, मार उसने हमें यहाँ 10% दे दी है, और इसी तरह स्टडी पीरियड भी हमारे पास 10 है। देन अब हम चलते हैं, ये उसने हमें बता दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास $150,000 की है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये और सैलवेज वैल्यू ये है, और यहाँ उसने हमें लाइफ दे दी है, ठीक है। तो अभी हम जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट वर्ल्ड हम अल्टरनेटिव एक ही निकाल लेते हैं। 10% इंटरेस्ट था और 10 ईयर था, यहाँ से हमने उसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर ली। ये हमारे पास सैलवेज वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, और ये उसने हमें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट दी थी वो थी। यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट वर्थ ऑफ अल्टरनेटिव ए आ गई, एंड देन हमने सेम करके यहाँ से जब सॉल्व किया हमारे पास बी आ गई। तो अब हम देख सकते हैं कि जौन सी वैल्यू इनमें से छोटी है ना, मतलब हमारे लिए प्रेजेंट में कम है, तो हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव ए था उसकी हमारे पास अल्टरनेटिव बी के मुकाबले में कम थी, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। नाउ ये सेम काम अब हमने एनुअल वर्थ एनालिसिस से भी कर लिया, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो एनुअल वर्थ ऑफ ए थी वो ग्रेटर आई एनुअल वर्थ ऑफ बी, अल्टरनेटिव बी से। तो ये भी हमारे यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हमारा पिछला एनालिसिस ठीक था और एनुअल वर्थ ऑफ अल्टरनेटिव ए इज़ बेस्ट। नाउ अब हमने अगेन इससे किया इंक्रीमेंटल आर ओ आर एनालिसिस से, तो हमें पता चल गया जो हमारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो आना चाहिए 2.5। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उसने हमें यहाँ बता दिया कि जो हमारा है इंटरेस्ट रेट 2.5 इज़ लेस दैन मार 10 है, सो द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन बी इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो उसने यही कह दिया कि आप अल्टरनेटिव ए को सिलेक्ट करें। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसने ना यहाँ कन्वेंशनल बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस से भी यहाँ उसने पूरा सॉल्व किया कि उसने प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स निकाल लिए, और और उसने डिस बेनिफिट्स भी निकाल लिए, और उसने पी डब्ल्यू ऑफ कॉस्ट भी निकाल ली। जब उसने इससे भी सॉल्व किया तो उसको पता चल गया कि जो हमारे पास पी है वो भी इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं है। उसने मॉडिफाइड रेशो से भी किया, तो वहाँ भी हमारे पास जो बी प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। तो उससे भी हमें पता चल गया कि हमारे पास जो अच्छा है वो अल्टरनेटिव ए है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने ई एस एल से भी इसको सॉल्व करके देख लिया कि वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। ये ए ओ सी का मतलब है हमारे पास एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एज सैलवेज वैल्यू को शो कर रहा है, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शो कर रहा है। और इसी तरह डिफेंडर वर्सेस चैलेंजर एट ईयर 5 पे भी उसने सब चीज़ें कैलकुलेट की, तो वहाँ से भी उसको पता चल गया जैसा कि उसने लिखा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिफेंडर 45,000 पर ईयर इज़ ग्रेटर देन एनुअल वर्थ ऑफ चैलेंजर 40,820 per year if a better challenger appears at year 5 replacement should be justified at that point। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसा कि आपको पीछे बताया था, तो जब इसने इसको सॉल्व किया तो यहाँ भी इसके पास 2.5 आ गया, और पे बैक एनालिसिस से भी जब उसने इसको सॉल्व किया तो उसके पास ये सारी सिंपल वैल्यू आ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने क्या हमें रिकमेंडेशन की, फाइनल रिकमेंडेशन क्या आई कि हमने अल्टरनेटिव ए को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज़ ठीक हैं या बी की निस्बत अच्छी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।
Assalamu alaikum. My name is Mohammad Huzaifa Hashim Qureshi, registration number 23 ME132. Today I am going to explain you some engineering economics terms that I have learned over this time over in my class. So let's move on. First, we will discuss about engineering economics. What is time value of money, present worth analysis, annual worth analysis, rate of return, capital recovery, benefit cost analysis, LCM of life, replacement analysis, and break even and payback analysis. इसमें जो है सबसे पहले हम engineering economics डिस्कस करते हैं. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स. उसके बाद जो है हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पैसा है वो टाइम गुजरते गुजरते उसकी क्या वैल्यू जो है वो रह जाती है. और हम आगे मूव करते हैं कि अब ये देख सकते हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स इज सिंपली इन सिंपल टर्म्स इन फिगरिंग आउट इफ अ प्रपोज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल बट आल्सो फाइनेंशियली प्रैक्टिकल. हमें ये देखना पड़ता है कि इंजीनियरिंग में कि एक चीज़ जो है वो टेक्निकली भी पॉसिबल है और साथ साथ वो फाइनेंशियली भी वो पॉसिबल है या नहीं है. फिर उसके बाद जो है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस होता है. प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस ये है कि जो फ्यूचर के आपके जितने भी कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, ये वो आउटफ्लोज हैं, वो अगर करंट जो टाइम है हमारा जो करंटली प्रेजेंट टाइम है इस पे अगर जीरो है तो वो हमारे पास जो है प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस कहलाता है. प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस का आप फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं गिवन है हमें. और फिर हम आगे आते हैं एनुअल वर्थ एनालिसिस पे. एनुअल वर्थ एनालिसिस बेसिकली क्या है? एनुअल वर्थ एनालिसिस ये है कि जो हमारे पास जितना भी कैश फ्लो है उसको इक्वली हम अगर यूनिफॉर्म ईयर जो हमारे पास जितने भी साल हैं जिस पे हमने वो कैश फ्लो बनानी है उस पे हम अगर इक्वली डिवाइड कर दें उसको तो वो हमारे पास जो है वो एनुअल वर्थ एनालिसिस में आ जाता है. एनुअल वर्थ एनालिसिस बेसिकली हम जब ईएमआईज बनाते हैं, लोन की रीपेमेंट्स होती हैं, मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स जिस तरह बनती हैं उसके लिए जो है एनुअल वर्थ एनालिसिस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए. देन इज फ्यूचर वर्थ एनालिसिस. अब फ्यूचर वर्थ जो है हमारे पास ये बेसिकली फ्यूचर वर्थ क्या है कि हमारे पास आज अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी. तो ये हमें बताता है कि अगर आज हमारे पास ये चीज़ इतने की है तो अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से वो बताता है कि हमारे पास जो है वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है. आप यहाँ पे इसके फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, फिर उसके बाद जो है उसकी फ्यूचर वर्थ क्या होगी ओवर द इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स. मूविंग फॉरवर्ड अब जो है रेट ऑफ रिटर्न की बात है. रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उस पे आपको कितना अभी तक मुनाफा आ चुका है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट किसी हाई रिस्क वाली जगह पे है तो हो सकता है उसमें आपका लॉस भी हो जाए. तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपका अभी तक कितना जो है वो लॉस हो चुका है या कितना आप मुनाफा किसी चीज़ पे जो है वो कमा चुके हैं. तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न है. रेट ऑफ रिटर्न में आगे उसकी टाइप्स हैं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉमिनल वर्सेस इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है, और जो इफेक्टिव होता है उसमें आप जो ऑलरेडी इंटरेस्ट उस मनी के ऊपर होता है उसको भी आप काउंट करते हैं. फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मार से जो है वो ग्रेटर होगा तो फिर ही आपको कोई भी प्रोजेक्ट या प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करना चाहिए. व्हाट इज मार नाउ? मार इज बेसिकली मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे हो. तो अगर वो हमारा 1 से ग्रेटर होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न तभी वी विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट. फिर कैपिटल रिकवरी है. इट इज बेसिकली द एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनिंग ऑफ एन एसेट और इन्वेस्टमेंट. मतलब ये अमाउंट है मनी कितनी भी हमने एक ईयर कंप्लीट होने पे उस पे अर्न की है, जो भी हमने अमाउंट जो है इन्वेस्ट की थी. और इसमें इंक्लूड सैल्वेज वैल्यू. सैल्वेज वैल्यू बेसिकली जो उसकी जो रीसेल वैल्यू है एट द लास्ट ईयर जो करंट वैल्यू उसकी होती है तो वो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू है. और सैल्वेज वैल्यू का भी गिवन है यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये कैपिटल रिकवरी का जो फॉर्मूला है ये भी यहाँ पे गिवन है. आगे है बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस. बेसिकली बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है? ये एवेल्युएशन होती है एक प्रोजेक्ट की कि अभी उसकी प्रेजेंट वर्थ एनुअल वर्थ जो है उसको देखते हुए कि डिसाइड करते हैं कि इसका जो है हमारे पास एनालिसिस क्या आ रहा है कॉस्ट का. मतलब वो बेनिफिट हो रहा है हमें, उसमें नहीं हो रहा, वो एक
वर्थ है हमारी इन्वेस्टमेंट की या नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो देन वी एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट। देन वो एलसीएम ऑफ लाइफ्स, एलसीएम हमें क्यों ज़रूरी होता है, हम क्यों लेते हैं एलसीएम? हम तब लेते हैं जब हमारे पास जो है कैश फ्लो डायग्राम्स गिवन हो और वो अनइवन ईयर्स पे गिवन हो, मतलब एक जो है वो 3 साल के लिए हो कोई कैश फ्लो, एक 4 साल के लिए हो, तो हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। सिमिलरली आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि 4 ईयर और 6 ईयर की अगर हमारे पास कोई दो भी कैश फ्लोज गिवन होंगी तो उनका एलसीएम हम 12 लेंगे, देन वी विल एबल टू सॉल्व दैट कैश फ्लो डायग्राम्स। Next is the replacement analysis. Replacement analysis in economic evaluation used to determine whether financially advantageous to keep existing the asset or replace it. इसमें हम basically analysis करते हैं कि अगर हमने किसी जगह पे investment की हुई है कि अभी वो investment हमें profit दे रही है या loss दे रही है, उसको देखते हुए हम अगले future की decisions लेते हैं कि क्या ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इसको मैं रखूं या जो है वो मैं इसको ना रखूं। मतलब अगर मैं चाहूं तो अपनी मनी जो है वो विड्रॉ भी करवा सकता हूं, और अगर जो है मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैं उसमें जो है वो और मजीद इन्वेस्ट करूं और अपना पैसा वहां पे पड़ा रहने दूं। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और फिर उसके बाद इसमें की टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो डिफेंडर की हो रही है, चैलेंजर की हो रही है और संक कॉस्ट की हो रही है। डिफेंडर यही है कि मतलब जो करंटली आप कर रहे हो वो मतलब आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। और चैलेंजर ये है कि एक नया प्रपोज्ड जो है, जो अगर आपकी करंट जो सिचुएशन को कोई अगर चीज़ चैलेंज कर रही है कि ये नहीं, ये इससे बेहतर हो सकता है, तो वो जो चैलेंजर का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब जो है वो हम एक केस स्टडी देख लेते हैं कि अगर एक फैक्ट्री आउटलेट में उन्हें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम फिर इसमें देखेंगे कि वो कैसे जो है वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब उन डिफेंडर मतलब ऑलरेडी उनके पास ये काम जो है वो चला आ रहा है, जिसमें उनके पास जो है वो ट्रेड इन वैल्यू बेसिकली हमारी ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने इतने करके लगाई थी और उसके बाद जो है साल भर जो है वो उसकी ऑपरेटिंग या जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी आती है हमारे पास 85,000। फिर रिमेनिंग ईयर जो है वो 3 साल की उसमें लाइफ बताई हुई है। फिर सैलवेज वैल्यू जो है एट द लास्ट ईयर की, अगर वो किसी कन्वेयर बेल्ट के सिस्टम का जो इक्विपमेंट है या सामान है या इन शॉर्ट वो उसको बेचना चाहते हैं तो आखिरी साल पे वो है कितने तक का बिक जाएगा। मार जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट 12% इधर गिवन है। और सिमिलरली हमारे पास जो चैलेंजर है कि दूसरा ये हमारे पास कितने और हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है इसको देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिव ए जो है वो हमारे पास ये है और ऑल्टरनेटिव बी ये है। हमारे पास यूजफुल जो लाइफ है वो 5 इयर्स है और 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब हम देखते हैं दोनों की प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करके। प्रेजेंट वर्थ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट वर्थ में ये जो चीज़ लिखी हुई है पी बाय ए ओवर पी बाई ए 10% और 5 इयर्स, ये बेसिकली जो है हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास इंटरेस्ट टेबल से आते हैं। इंटरेस्ट टेबल से हमारे पास जब फैक्टर्स आते हैं तो उसको हम फॉर्मूले में पुट करके फाइंड करते हैं आंसर्स। और ये जो नेगेटिव साइन है इसका ये मतलब होता है कि कोई भी अगर कैश फ्लो डायग्राम है उसमें अगर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जो पैसा आपकी तरफ से जा रहा है वो बिलो द एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट होता है हमारे पास। बिलो द एक्सिस रिप्रेजेंट होता है अगर कोई जो मुनाफा हमारे पास आ रहा हो या पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ रही हो तो वो हमारे पास जो है वो एक्सिस से ऊपर रिप्रेजेंट होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एनुअल वर्थ एनालिसिस है कि हम दोनों की एनुअल वर्थ कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वर्थ हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे भी सेम फैक्टर जो है वो यूज हुआ है इंटरेस्ट टेबल्स को यूज करते हुए। देन जो है हमारे पास ये है कि फ्यूचर वर्थ भी हमने देखनी है, रेट ऑफ रिटर्न है और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस जो है मैंने पहले बताया था कि अगर 1 होगा तो फिर ही उसके बाद जो है वो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब जो है फाइनल डिसीजन की बारी। हमने सारा ऑल्टरनेटिव्स देख लिए, एनुअल वर्थ कैलकुलेट कर ली, उसकी फ्यूचर वर्थ कैलकुलेट कर ली। उसके बाद जो है हमने डिसाइड करना है कि कौन सा हमारे लिए प्रोजेक्ट जो था वो बेहतर था। अब इसमें अगर आप देखें कि जो हमारे पास हायर प्रेजेंट वर्थ आ रही है
और जो हमारे पास एनुअल वर्थ है, ये जो दोनों हैं ये हमारे पास प्रोजेक्ट बी की जो है वो हमारे पास ज़्यादा बेहतर आ रही हैं। क्या मतलब अभी प्रेजेंट वर्क में अभी हम पैसा भी कम देंगे और जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो पूरे साल में हमें एनुअल वर्थ है जो उनकी, उन पे जो पैसा खर्च भी हम करेंगे वो भी हमारे पास जो है वो कम है। सो इसलिए जो है हम ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिकली हमारे लिए जो फिजिबल है वो अल्टरनेटिव बी है। अब एक छोटी सी दूसरी केस स्टडी हम और देख लेते हैं कि हमारे पास वाटर पंप की रिप्लेसमेंट है कि अभी जो करंटली अगर हमारे पास वाटर पंप चल रहा है तो वो हमारे पास डीजल वाटर पंप चल रहा है, उसको जो है वो हम सोलर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो है अभी हम देखते हैं इनकी आगे कैसे लेके चलते हैं। इसका एनुअल वर्थ अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिफेंडर है वो ऑलरेडी जो है ये इस हिसाब से एक साल की उसकी कॉस्ट आ रही है एनुअल वर्थ, और जो चैलेंजर है जो हमें बेनिफिट हो सकता है और कर रहा है करे तो उसकी जो हमारे पास इतनी एनुअल वर्थ आ रही है। तो अब हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी विल डिसाइड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर आवर सेल्फ। अब इसमें जो है हमने पीछे देखा क्योंकि एनुअल वर्थ जो है वो उस सोलर वाले की हमारे पास कम थी और करंटली जो है हम ज़्यादा पैसे दे रहे थे दूसरे डीजल वाले पे। तो इस वजह से हमने सारे जो हमारे पॉइंट्स थे उनको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि जो सोलर वाला है उस पे हमें स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक तो अभी हमारे पास एनुअल वर्थ भी कम आएगी और वो हमारे लिए ऑपरेटिंगली ज़्यादा फिजिबल होगा। और फिर फ्यूल की प्राइसेस जो है वो वेरी करती रहती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है वो डीजल इंजन जो डीजल जो साइकिल है अभी हमारा ऑलरेडी चल रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं हो सकता। सो अब ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में ये था कि ये जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक और केस स्टडीज डिस्कस की हैं, इसमें प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, एनुअल वर्थ एनालिसिस, फ्यूचर वर्थ था, कैपिटल रिकवरी, और यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट और पे बैक एनालिसिस है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो हमारे पास है ब्रेक इवन एनालिसिस आइडेंटिफाई द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द कॉस्ट। मतलब ये जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इस पे हमारे पास ना ही कोई लॉस हो रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है। अब हमारे पास इस टाइम पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई हमारे पास जो है वो लॉस है। और पे बैक जो है वो पे बैक जो है हमारे पास, इसका ये मतलब होता है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है अभी तक, इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम ऑफ पीरियड में हमें वो वापस मिलेगी, मतलब कैलकुलेट्स द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये हमने देख लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होता है और पे बैक एनालिसिस भी होता है। केस स्टडीज हमने दोनों। Assalamualaikum everyone, my name is Zain Akbar and my registration number is 23MU21. Today we are here to present the video of the basic of two parts. The first part is explaining the basic concept that we are taking from the engineering economics book chapter 1 to 13, and the second part of the video is we are explaining in the case study related to our concept that we defined earlier. The first concept that we are explaining here is the internal rate of return. Basically, the internal rate of return defines that is the interest rate at which the present worth of all the cash inflows becomes equal to the present worth of all the cash outflows. At this point, the present worth is equal to zero. At this point, the present worth is equal to zero. And other simple words, we have to explain that internal rate of return tells us how much of profit or return a project can earn every year. I can earn every year. The formula that he has said is that present worth is equal to zero. This means that the money invested it is exactly equal to the money earned over the life of the project. Decision rule. Now we compare the internal rate of return with the minimum attractive rate of return. And with the minimum attractive rate of return, if the internal rate of return is greater than or equal to minimum attractive rate of return, then the project is accepted. If the internal rate of return is less than a minimum attractive rate of return, then the project is rejected. For example, if the company minimum attractive, for example, if the economics minimum attractive rate of return is 12% and the project internal rate of return is 15%, then the project is accepted. But if internal rate of return is only 8%, the project is rejected because it earns less than the required return. The second concept that
And the second concept that we are explaining here is the incremental rate of return analysis. This method is used when we have two or more alternatives such as alternative A and alternative B. A common mistake is comparing that we have done in incremental rate of analysis is that we have to compare extra investment needed for the more expensive project. For the more expensive project, arrange the project from the lowest cost to the highest cost. Find a difference in cash flows between the two projects. Next, calculate the incremental rate of return. Calculate the incremental internal rate of return of the both projects. Then compare it with the minimum attractive rate of return. If the internal rate of return is greater than minimum attractive rate of return, then additional investment is worth, and we choose the higher cost project. If the internal rate of return is less than minimum attractive rate of return, then spending extra money is not justified, and we have to choose a lower project. So this might help decide whether upgrading to more expensive alternative is a good decision. This is a good decision. The third concept that we are explaining is the benefit cost ratio, also called B by C co-ratio. This method is commonly used in government and public sector projects such as water supply systems, roads, bridges, schools, hospitals. The formula that we are using for finding the benefit cost ratio is the present worth of benefit cost ratio is equal to present worth of the benefits divided by present worth of cost. Uh, Here benefits are the positive effect of the project, and cost are the total expenses of the project that we have to spend on that project. Decision if benefit cost ratio is greater than or equal to 1, the project is economically justified. If the benefit cost ratio is less than 1, the project is not economically justified. It's not economically justified. For example, if the project gives 120 million rupees of benefits and cost 100 million rupees, then the benefit cost ratio is called 120 divided by 100 is equal to 1.2. Since it is greater than 1, the project is acceptable. For example, if it is less than 1, so the project is not acceptable and it is not economically justified. Next is the modified benefit cost ratio. Sometimes projects have also these benefits. These benefits have the negative effect caused by a project. For examples include noise pollution, traffic congestion, environmental pollution, and dust during construction. The modified benefit cost ratio subtract these benefits from the total benefits before comparing them with cost. This gives a more realistic evaluation of the project. And the fourth concept that we are explaining here is the incremental benefit cost analysis. This method is used when we have to compare with multiple alternatives. Instead of directly choosing the project with the highest benefit, we have to compare the extra benefits and extra costs of moving from one alternative to another. Basically, this concept is that we are choosing two projects. One with the highest benefit cost ratio and one with the lowest benefit cost ratio. We have to select with the highest benefit cost ratio, and we compare the extra benefits and extra cost moving from one alternative to another. And the steps are arrange the project from the lowest cost to the highest cost, calculate the benefit cost ratio of the first project, compare the next project using the incremental benefit cost ratio. If the incremental benefit cost ratio is greater than or equal to 1, choose the higher cost project. If it is less than 1, then keep the lower cost project. And this method helps avoid unnecessary spending and ensures that only worthwhile investment are selected. To conclude, internal rate of return tell us the profit or return of a project. Minimum attractive rate of return is the minimum acceptable rate of return, and incremental rate of return compares the extra investment between alternatives. Benefit cost ratio compares project benefits with highest cost with project cost with highest cost. Incremental benefit analysis helps select best project among several alternatives. The best methods the best methods that these methods are best to use in engineering economics for to make smart, cost effective investment decisions. The second part of the video is that we have to explain our case study related to our concepts that we have defined earlier. It is the problem that you're describing a textile manufacturing company in Pakistan.
and in company in Pakistan that has been operating for more than 15 years. For more than 15 years, as the boilers became old, several problems occurred: high fuel consumption, frequent maintenance, and unexpected shutdowns, and high gas pollution, high electricity consumptions. Because production increased by 20%, or boiler could no longer meet the factory's requirement. Now, management decided to replace it. And the objective is select a replacement method that provides the greatest economic benefit over a 10-year life cycle. The target minimum attractive rate of return is 12%. Is the target minimum attractive rate of return is 12%. It's 12%. Management decided to replace it. And the slide we have the data here evaluating the two replacement options, and the option alternatively is alternative A. The project A is conventional, and alternatively B is energy efficient. Initial cost for the project alternative A is conventional is $80,000, and the alternatively for B is $110,000. And lifespan of project alternative A is 10 years, and project B is also 10 years. Annual fuel saving is $22,000 per year of alternatively project A and alternatively project A, and for the project B is also $33,000 per year of alternatively project B. And annual maintenance of the for the project A is the $5,000, and for the project B is $3,000. Salvage value for the project A is $8,000, and for the project B is 12,000. And the salvage value of the alternative project B is 12,000. Okay. The company selected minimum attractive rate of return is 12%. And the next step is the baseline net cash flow and usual alternative rate of return confirm both of project alternatively A conventional and alternatively B efficient. And first of all, we have to compare the alternatively project A data convention. As that is the first that we have here is the $23,000 savings for the project A minus $5,000 on maintenance, and net cash flow that we are comparing is the $17,000 per year of the project for the project A. So its internal rate of return is 17%. It is greater than 12%, 12% minimum attractive rate of return. The second project that is alternatively B, that energy efficient, its saving is $33,000 per year savings minus $3,000 maintenance, and $3,000 maintenance, and the net cash flow for the per the year is $33,000 is $30,000. The internal rate of return is that for the project B is 21%, and is also greater than minimum attractive rate of return data at 12% that the company should be provided. The conflict is that the both projects are greater than company minimum attractive rate of return of 12%. So both projects are both projects are economically acceptable individually. That both projects are economically justified, but the project for the project B its internal rate of return is greater, so the project B is selected for the so the project B is selected. And the next step that we have is the incremental rate of return. Is the incremental rate of return that we have to it is extra capital required for the project A is $110,000, and for the project B is $100,000, and for the project A is $80,000. So that we have extra capital required is $30,000 for the extra $30,000, and the extra annual benefit for the project B is $30,000 minus for the project A is $17,000, $30,000 per year. Extra incremental rate of return on the extra 30K investment is 18%. This is because 18% is greater than 12% minimum attractive rate of return. Spending the extra 30,000 upfront is definitely justified. And the next concept that we are using is the benefit cost issue. Is the benefit cost result. The report provides the benefit cost ratio of benefits dollars is $205,000. $205,000. Present worth of the cost dollars is $168,000. Both should be divided. And the result is 1.22. It is greater than 1.0, so it is economically justified.
and the modified benefit cost ratio for the project B. For the project B is that at assigning a $10,000 present worth financially for the localized emission installation restriction. Dollar 2,000 and $205,000 minus dollar 10,000 divided by dollar 168,000 is equal to 1.16. It is also greater than 1, and it is also remains economically justified for the project. Both project A and B are economically justified. Both project economically A and B are also justified. And the final recommendation that we are here made is that he is making is that he is the final recommends that he is making is that the final project that we are the final project that is when the both projects that we are comparing the project A and project B, its benefit cost ratio is greater than 1, and the both project are economically justified and requires government subsidy. And the port also considers that environmental impacts. There are these benefits. There's also these benefits that are damaging the environmental pollution is estimated at $10,000. As after including these benefits, the modified benefit cost ratio becomes 1.16, and since it is still also greater than 1, the project remains economically feasible. In the end, we have to make the final recommendation for the final recommendation and conclusion for the alternatively project B energy efficient boiler baseline probability and individual internal rate of return on 21% cleanly superpasses the 12% minimum requirement. That the project B is 21% and internal rate of return it is greater than minimum effective rate of return that provided in the problem. The capital efficiency an incremental internal rate of return of 80% guarantees the extra $30,000 upfront cost yields previous return. As to all SIG value, a modified benefit cost ratio of 1.16x ensures that total benefits outweigh total cost even when accounting for negative environmental impacts. Basically, the conclusion is that both alternatives have internal rate of return greater than minimum effective rate of return, and so it is economically justified. The incremental internal rate of return shows that the spending extra money on the energy efficient is worthwhile. Both benefit cost ratio and modified benefit cost ratio are greater than 1. Thank you very much. 50 MLD से बढ़ाकर 250 MLD करने का मनसूबा बनाया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माशी लिहाज से कौन सा मुतबादिल बेहतर है। तो इसमें तो स्लाइड नंबर 3 पे हम जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि ये जो इनमें शामिल टाइम वैल्यू मनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैश फ्लो डायग्राम, एफ और पी फैक्टर, पी और एफ फैक्टर, ये सारा जो है ये तमाम टूल हैं जो ये हमारे मुख्तलिफ सरमायाकारी के मुतबादिल का माशी तजज़िया पेश करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है क्या। इंजीनियरिंग इकोनॉमी एक वो शोबा है इंजीनियरिंग का जिसमें मुख्तलिफ मनसूबों की लागत, फ़ायदे और सरमायाकारी का माशी तजज़िया किया जाता है ताकि बेहतरीन फैसला किया जा सके। सादा अल्फाज में अगर हमारे पास दो से इससे ज़्यादा मनसूबे मौजूद हैं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि कौन सा मनसूबा कम लागत और ज़्यादा फ़ायदा फराहम करेगा। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कैश फ्लो यानी रकम का आना और जाना, दूसरी चीज़ टाइम यानी वक़्त, और तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट यानी शरह मुनाफा या शरह सूद इस पर कितना है। ये तीनों अवामिल मिलकर हमें दुरुस्त माशी फैसला लेने में मदद देते हैं। तो हम सबसे पहले जो जिक्र करेंगे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जिक्र करेंगे। स्लाइड नंबर 5 पे जाएंगे। स्लाइड नंबर 5 नेक्स्ट करें। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक नंबर पीछे स्लाइड करें, ये वाली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको मुख्तसरन TVM भी कहा जाता है, एक इंजीनियरिंग का बुनियादी असूल है। इसका मतलब यह है कि आज हमारे पास मौजूद रकम मुस्तकबिल में मिलने वाली इस रकम से ज़्यादा कीमती होती है। इसकी वजह यह है कि आज की रकम को सरमायाकारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है जबकि मुस्तकबिल की रकम से ये फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर आज हमारे पास 1 लाख हो
तो हम इन्हें किसी अच्छी सरमायाकारी में लगाकर चंद साल बाद इसकी मालियत में इजाफा कर सकते हैं। इस असूल की बुनियाद पर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में हर फैसले में वक़्त को अहमियत दी जाती है। तो इसमें जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट, एक नंबर पीछे करें, स्लाइड 5 पे। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट में मुनाफा हमेशा सिर्फ असल रकम पर लगाया जाता है। इसका जो फार्मूला है वो है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम। जबकि जो दूसरी चीज़ है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल असल रकम के साथ पहले से हासिल होने वाला मुनाफा भी शामिल हो जाता है, इसलिए अगले साल मुनाफा असल रकम और पहले वाले मुनाफे दोनों पर मिलता है। इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट ग्रोथ के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो जिन्हें इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो कंपाउंड इंटरेस्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हकीकी सरमायाकारी के ज़्यादा करीब होता है। इसके साथ ही जो कैश फ्लो डायग्राम है, तो कैश फ्लो डायग्राम की बात करें तो ये एक ऐसा डायग्राम है जो हमें किसी मंसूबे में रकम के आने और जाने के वक़्त को साथ साथ दिखाता है। नीचे की तरफ जाने वाले कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट को ज़ाहिर करते हैं, जबकि ऊपर की तरफ जाने वाले तीर इनकम या सैलवेज वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। जिन्हें इकोनॉमिक्स में किसी भी कैश फ्लो सवाल को हल करने से पहले डायग्राम बनाना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे गलतियों के इम्कानात कम हो जाते हैं और कैश फ्लो जो होता है वो वाज़ेह हो जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें और नेक्स्ट। तो ये जो हमारा केस स्टडी का है, इसके जो हमने प्रैक्टिकल हमने इसको इसमें देखा है, इसमें हम देखते हैं। तो अब हम कैश फ्लो डायग्राम के बाद जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की केस स्टडी पर आते हैं। इस मंसूबे में दो मुतबादिल मौजूद हैं। पहला है अल्टरनेटिव ए जो कन्वेंशनल ग्रेविटी फेड फिल्टर है। दूसरा अल्टरनेटिव बी है जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर बी यानी MBR है। इस मंसूबे की मुद्दत 20 साल रखी गई है, 20 ईयर्स, और मार यानी मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न 12% मुकर्रर किया गया है। मार से मुराद कम अज़ कम वो शरह मुनाफा है जिस पर कोई दायरा सरमायाकारी करने के लिए तैयार होता है। अगर किसी मंसूबे की मार रिटर्न से ज़्यादा या बराबर हो तो मंसूबा काबिल कबूल समझा जाता है, वरना इसे कबूल नहीं किया जाता। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें जो हमारा है वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट कैश फ्लो जो डायग्राम है, जैसा कि पहले बताया गया, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट में दो अल्टरनेटिव हैं। अल्टरनेटिव ए यानी कन्वेंशनल ग्रेविटी फेड फिल्टर और अल्टरनेटिव बी यानी मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR। मैं सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम उस पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पर जो ईयर 0 दी जाती है। अल्टरनेटिव ए उस पर 480 मिलियन PKR हैं, जबकि अल्टरनेटिव बी में 650 मिलियन PKR हैं। ये इनकी इब्तदाई लागत है। इसके बाद हर साल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। अल्टरनेटिव ए की सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट 22 मिलियन PKR है, जबकि अल्टरनेटिव बी की 14 मिलियन PKR है। प्रोजेक्ट के जो इख्तिताम है उसका 20 साल बाद हमें सैलवेज वैल्यू भी हासिल होती है। अल्टरनेट ए की जो सैलवेज वैल्यू है वो है 40 मिलियन और अल्टरनेटिव बी की है 80 मिलियन। तो ये जो कैश फ्लो डायग्राम होती है ये प्रोजेक्ट की माली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसको समझने में हमें फ़ायदा देती है। तो आप नेक्स्ट करें, इसे भी नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये फ्यूचर वर्थ जो है, फ्यूचर वर्थ जो कैलकुलेशन है, इसमें टाइम मनी ऑफ वैल्यू का एक अमली इस्तेमाल दिखाता हूँ। हमने अल्टरनेटिव ए की इब्तदाई सरमायाकारी यानी 480 मिलियन PKR को 12% मार पर 5 साल के लिए फ्यूचर वर्थ में तब्दील किया और हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो था F =
P इंटू 1 + I की पावर n। तो कैलकुलेशन के बाद जो फ्यूचर वर्थ तकरीबन 846.3 मिलियन PKR बनती है। इस मिसाल से ये साबित होता है कि वक्त के साथ रकम की कदर बढ़ती है, इसीलिए सरमायाकारी के फैसलों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसमें है, इससे पीछे वाली। नेक्स्ट आइए, इस एक नंबर पी भाई, इससे पीछे वाली है जो ये वाली ये इधर ही रहेंगे। इस मिसाल में फर्ज किया गया है कि अल्टरनेटिव बी की एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दूसरे साल से हर साल 1 मिलियन PKR बढ़ती है। इस सूरत हाल में अल्टरनेटिव ग्रेडियंट फार्मूला इस्तेमाल किया गया है ताकि मालूम किया जा सके कि इस इजाफे की बराबर सालाना की लागत बनती है। कैलकुलेशन के मुताबिक जो यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट कॉस्ट है एनुअल, वो तकरीबन 17.5 मिलियन PKR बनती है। ये मिसाल में सिखाती है कि अगर अखराजात हर साल बढ़ रहे हों तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के ग्रेडिंग फैक्टर इस्तेमाल करके इनका दुरुस्त माशी तजज़िया किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सिंगल अमाउंट फैक्टर्स हैं F और P एंड P और F, इसको बताना था। इसमें यह है कि हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में जब हमें सिर्फ एक रकम को मुस्तकबिल या हाल की कीमत सिंगल अमाउंट में तब्दील करना हो तो हम फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। पहला जो F और P फैक्टर कहलाता है, जिसे फ्यूचर अमाउंट फैक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास आज की रकम मौजूद हो तो चंद साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी। दूसरा जो होता है P और F फैक्टर होता है, जिसे प्रेजेंट वर्थ फैक्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब हमें मुस्तकबिल में मिलने वाली रकम की आज की कीमत मालूम करनी हो। ये दोनों फैक्टर सरमायाकारी के फैसलों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से मुख्तलिफ औकात की रकूम का मुआवजा किया जा सकता है। तो इसके बाद जो होता है इसको मैं फ्रेम करूंगा अरिथमेटिक ग्रेडियंट और मार। ये नेक्स्ट स्लाइड करें। इससे पीछे और पीछे, इससे पीछे। हाँ, इसमें जो है अरिथमेटिक ग्रेडियंट है, इसकी बात करते हैं। अगर किसी मनसूबे के अखराजात या आमदनी में हर साल एक मुकर्ररा रकम का इजाफा हो तो इसे अरिथमेटिक ग्रेडियंट कहते हैं। इसके लिए P over G और फैक्टर A और G इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए P over G और फैक्टर, इसके बाद हम मार यानी मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं। तो इसमें जो होता है वो कम से कम है जो शरह मुनाफा है, जिसकी कोई भी सरमाया करने के लिए तैयार होता है। तो अब हम स्लाइड नंबर 14 की तरफ जाते हैं। भाई नेक्स्ट, इसके आगे। तो इसमें जो अब हमने इस मिसाल में हमने फर्ज किया है कि इससे पीछे वाली, तो अब हम इसमें लास्ट में बात करते हैं कि जो हमने इस मिसाल में फर्ज किया है कि अल्टरनेटिव बी की जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो दूसरे साल से 1 मिलियन PKR बढ़ती है। इस सूरत हाल में अरिथमेटिक ग्रेडियंट फार्मूला इस्तेमाल किया गया ताकि मालूम किया जा सके कि इस इजाफे की बराबर सालाना लागत कितनी बनती है। तो इस फार्मूले के मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक, वो जो इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म कॉस्ट है वो 17.5 मिलियन PKR बनी। तो हम अगर फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएं तो आज जो मैंने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के बुनियादी कंसेप्ट बयान किए हैं, जिनमें सिंपल कंसेप्ट हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैश फ्लो डायग्राम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है और मार्च शामिल है। इसके बाद इन्हीं कंसेप्ट को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक्सपेंशन की केस स्टडी पर लागू किया गया और कैश फ्लो जो है, फ्यूचर वर्थ कैलकुलेशन डायग्राम और एनुअल ग्रेडियंट की मिसालें पेश की। तो मेरी प्रेजेंटेशन सुनने का सबका शुक्रिया वगैरह। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मेरा नेक्स्ट
साथी है वो कंटिन्यू करेगा इसको। यार इसमें ना थोड़ी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई थी।